Hello learners, welcome back to my channel. As you all know, today we are going to discuss our OTET examination answer key with detailed explanation. Okay, so this is your OTET exam question paper 2 which was held on 17th December 2025. ओके सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ओटेट एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन पेपर रखा है मैंने यहाँ पर, और ये सेट सी है। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विद देयर डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, ऑप्शन के बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में भी जो गिवन है उसके बारे में भी आप पेन एंड पेपर लेके नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है वो इन्हेंस होगी थोड़ी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज which one of the following is an example of meaningful learning? 4 options are given, you have to choose only one appropriate answer. Okay, जो कि एग्जाम्पल है मीनिंगफुल लर्निंग का। नाउ रीड द ऑप्शंस। रिमेंबरिंग अ पोयम बाय रिपीटेड प्रैक्टिस, क्या एक पोयम को बार बार रिपीट करने से मीनिंगफुल लर्निंग वहाँ पर कही जाएगी? नहीं, गलत है। सेकेंड ऑप्शन इज रिपीटिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को बार बार रिपीट करने से वहाँ पर लर्निंग इंप्रूव होगी, इन्हेंस होगी? नहीं, गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी इज elaborating an idea. Okay, elaborating an idea, this is an example of meaningful learning, so our option number C is the correct answer. Option number D, imitating the teachers to draw a geometrical shape, this is also wrong one. Option number C is the correct answer. Now come to question number 2. What is the first step of curriculum development? Here 4 options are given, you have to choose only one, which is the first step of curriculum development. Okay, तो curriculum development का यहाँ पर first step कौन सा होगा? Creating the syllabus? No. Selection of instructional materials? No. Evaluation of effectiveness of the curriculum? No. Assessment of learning needs of the student. Option number D is the correct one. This is the first step. Okay, assessment of learning needs of the student, this is the first step of curriculum development. Other options are creating the syllabus, this is the second step. Okay, in this curriculum this is the second step. And option number B, selection of instructional material, this is the third step. And evaluation of effectiveness of the curriculum, this is the fourth step, or we can say this is the last step of this curriculum development. Okay, so यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप सबके बारे में पता चल गया है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट स्टेप की जगह एग्जाम में आपसे लास्ट स्टेप भी पूछ सकता है। तो लास्ट स्टेप अगर होगा तो इवेल्युएशन वाला जो भी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं। Okay, so for this question option number D is your correct answer. Now come to question number 3. Which tool is not used for observation? Okay, there are 4 tools given in the option: anecdotal record, rating scale, checklist and questionnaire. Okay, so option number D, questionnaire is not used for observation. Questionnaire means there are questions designed to gather information, which is called questionnaire. Okay, so questionnaire is not used for the observation. Option number D is the correct answer. Now moving forward to next question, question number 4. What is the purpose of diagnostic evaluation? आपको यहाँ पर बताना है कि diagnostic evaluation का क्या purpose है। 4 options are given. Now read the options. To identify learners' specific weakness, very true and correct answer. Okay, this is only the purpose of diagnostic evaluation, to identify learners specific weakness. This is your correct answer. Now see the other options as well. To know overall learning achievement of learner, क्या लर्नर की ओवरऑल अचीवमेंट को हम बोलते हैं पर्पस? नहीं, गलत बात है। टू नो द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, ये भी गलत बात है, स्कूल के बारे में कहा जा रहा है। लास्ट इज टू प्रोवाइड पास सर्टिफिकेट, क्या बच्चों को पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का पर्पस होगा? नहीं, गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशन। आपको यहाँ पर बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इमोशन का एग्जाम्पल नहीं है। नॉट, ओके। सो एंगर, फियर एंड लव, दिस 3 are the example of emotion. Only physical activity. Physical activity is not an example of emotion. Now come to question number 6. Which period is known as a stage of stress and strain? यहाँ पर stage of stress and strain कौन सा है? आपको 4 पीरियड दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन में, adolescence, childhood, adulthood और old age. तो adolescence, okay, adolescence is the period is known as a stage of stress and strain. Now see the other options as well. यहाँ पर ये चारों पीरियड जो हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइडेड है, ओके। सो एडोलसेंस यहाँ पर इसका एज होगा 10 to 19, 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप वाले लोग एडोलसेंस पीरियड में आते हैं। चाइल्डहुड 0 to 10 ईयर्स, एडल्टहुड 20 to 65 ईयर्स के लोग, एंड ओल्ड एज 65 प्लस ईयर्स के लोग यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं ओल्ड एज में, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इन विच स्टेज डज द चाइल्ड स्टार्ट टू नो अबाउट परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? ये 4 स्टेज आपको गिवन है। ऐसी कौन सी स्टेज है जिस स्टेज में एक बच्चे को पता चलता है परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, ओके। सो इन्फेंसी इज द स्टेज जहां पर बच्चे को पता चलता है परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट है, ओके। सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, where all the students learn together in the same classroom. That's called inclusive education, okay. Now read the options. Here option number B is the correct answer, okay. Accepting difference and diversity and teaching all students in one school, this is called inclusive education, or this is the function, or this is the characteristic of inclusive education, okay. So your more appropriate answer is option number B. Now come to question number 9. Very easy question and mostly repeated PYQ, okay. Multiple intelligence theory was propounded by Howard Gardner. Howard Gardner given a theory named multiple intelligence theory, okay. Question number 10 is, which of the following is the most appropriate co-curricular activity to promote creativity? यहाँ पर क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए इन चारों में से ऐसी कौन सी को-करिकुलर एक्टिविटी है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सही है? तो यहाँ पर स्टोरी राइटिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट को-करिकुलर एक्टिविटी टू प्रमोट क्रिएटिविटी, ओके। क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ओके। Now come to question number 11. Which one among the following is a hindrance to quality teaching? यहाँ पर hindrance का मतलब होता है रुकावट पैदा करना या फिर to break. Hindrance means to break, okay? So quality teaching को ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो quality teaching को break करेगा, okay? Now read the options. Availability of sufficient TLM. TLM means teaching learning material and their use. B number, use of alternate learning experiences. C number, single grade with a large number of students. 4 option is implementation of continuous and comprehensive evaluation, okay. Now understand the concept first. यहाँ पर दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वालिटी टीचिंग को कौन सा ब्रेक करेगा, ओके। एंड ऑप्शन में आपको गिवन है पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट TLM एंड देयर यूज। ये बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पर क्वालिटी टीचिंग के लिए हिंड्रेंस नहीं बनेगा, ओके। हमसे हिंड्रेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो हमसे यहाँ पर नेगेटिव चीज पूछा है, लेकिन ये जो है वो क्वालिटी टीचिंग के लिए पॉजिटिव सेंस में आता है और बिल्कुल सही बात है ये, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यूज ऑफ अल्टरनेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये भी नहीं होगा, ये भी एक हिंडर का काम नहीं करता है क्वालिटी टीचिंग में। सी ऑप्शन इज सिंगल ग्रेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स एक ही ग्रेड में बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ओके। तो ये यहाँ पर क्वालिटी टीचिंग के लिए एक हिंडर का काम करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। ये भी एक तरह से सही बात है, टीचिंग को प्रमोट करेगा, टीचिंग क्वालिटी को, पॉजिटिव सेंस में है ये सेंटेंस, तो ये भी यहाँ पे एक तरह से हिंडर का काम नहीं करेगा। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द हिंड्रेंस। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन helps to modify the method of teaching. Okay, very easy question. Continuous and comprehensive evaluation helps to modify the method of teaching. Other options are reduces learning time for the learners. Learners के learning time को क्या कम करता है, reduce करता है? No. Increase the workload of teacher, क्या teacher के workload को बढ़ा देता है? No. इंक्रीज द एग्जामिनेशन प्रेशर ऑन लर्नर्स, क्या लर्नर्स के अंदर, बच्चों के अंदर एग्जामिनेशन प्रेशर को बढ़ा देता है? नो। ओके, सो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन हेल्प्स टू मॉडिफाई द मेथड ऑफ टीचिंग। ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ओडिशा इज डैश। What type of question is this? So this is a complete type question. Okay, why this is complete type question? Because your question is name of the capital of Odisha and your answer is Bhubaneswar. Okay, so this is the complete type question. Okay, यहाँ पर आपको एक question है और उस question का आपको पूरा appropriate answer मिल जा रहा है without any doubt. Okay, so this is called complete type question. Option number B is the correct answer. Now come to question number 14. Learning in one situation does not have any significant influence over the learning in another situation. Okay, इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर? First you have to understand the logic behind this question. So learning in one situation, suppose एक situation में यहाँ पर बच्चा एक पढ़ाई कर रहा है, learning का काम यहाँ पर चल रहा है. Okay, एक situation में बच्चा क्या कर रहा है? Learning में busy है. Does not have any significant influence over the learning in another situation. एक situation में यहाँ पढ़ाई हो रही है, दूसरी situation में यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि दोनों situation एक दूसरे से influence नहीं हो रही है. ओके, तो इसको क्या कहा जाएगा? This is the definition of zero transfer. Now come to next question. Question number 15. Again I am telling you this is the set C. Okay, आप अपने सेट ए, बी और डी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं. अगर आपका सेट नंबर सी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 इज इन लेट चाइल्डहुड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लुक टॉलर एंड थिनर बिकॉज. लेट चाइल्डहुड में क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कैसे दिखते हैं? टॉलर दिखते हैं एंड थिनर दिखते हैं. बिकॉज क्या रीजन है यहाँ पर? बिकॉज hands and legs grow stronger and longer as compared to torso. Okay, option number C is the correct answer. यहाँ पे बैलेंस डाइट की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर किसी टाइप की कोई डिजीज की बात भी नहीं होगी, हाइट की वजह से वो यहाँ पे नेचुरली थिन हो जा रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं होगी, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. हैंड्स एंड लेग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर एज कंपेयर टू टॉर्सो. Come to question number 16. Which statement is not correct about development? यहाँ पर development के बारे में कौन सा sentence जो है वो गलत है, not correct. Okay. Now come to the options. Option number A. Both genetics and environmental factors influence development. Okay, ये तो बिल्कुल सही बात है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये क्या कर रहा है? डेवलपमेंट के लिए एक तरह से करेक्ट है ये. ओके. बी नंबर इज इनिशियली डेवलपमेंट इज नॉट रैपिड. रैपिड मीन्स फास्ट या फिर ग्रो. ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनिशियली स्टार्टिंग में डेवलपमेंट जो होता है इज नॉट रैपिड, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमसे यहाँ पर वही पूछ भी रहा है कि नॉट करेक्ट. ओके, सो अब ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. यस, राइट. D number is development is unique for each individual. This is also right. Okay, so not correct में option number B is the correct answer. Now come to question number 17. Which of the following statement related to principle of development of an individual? 4 statements are given. ये चारों में से ऐसा कौन सा
स्टेटमेंट है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर। नाउ कम टू द ऑप्शंस। ए, डेवलपमेंट इज ओनली क्वालिटेटिव, नो। डेवलपमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव, नो। Development is always cross-sectional, no. Development is both quantitative and qualitative. This is the correct one. Option number D is the right answer. Okay. Now moving forward to our next question. Question number 18. Which of the following is an example of peer learning? Peer learning means group learning or group discussion. Okay. So 4 options are given. You have to choose only the right one or the right example of peer learning. Okay. Your question is about peer learning. So now read the options. Reading the book in a class. Class में book reading करना peer learning होगा? नहीं होगा. Listening to the teacher in the classroom. Classroom में teacher को सुनना peer learning में आएगा? नहीं. Doing assignment with the help of teacher. Teacher की help से assignment complete करना peer learning में आएगा? No. Group discussion with the help of map. Group discussion with the help of map. Option number D is the correct answer. Okay, this is only an example of peer learning. Now come to next question. What is the mean of 21, 21, 23, 24, 27 and 25? Okay, so इसका आपको यहाँ पर मीन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लोअर टू हायर टर्म। ओके, दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। मीन्स ये सबको ऐड करना है पहले। 21, 21, 23, 24, 25, 27 ये सबको ऐड करना है। तो ये ऐड करने से आंसर आएगा 141। अभी क्या करना है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर लिए। अब जितने नंबर्स हैं यहाँ पर इस रिजल्ट को उससे डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे। योर आंसर विल बी 23.5। ओके, 23.5 इज योर मीन। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए कि मीन मीन्स क्या होता है, एक तरह से एवरेज निकालते हैं हम इसमें। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, इट सेज अबाउट डैश ऑफ द टेस्ट, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। व्हेन अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, इट सेज अबाउट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। Option number A is the right answer. Okay. Now moving forward to our next question, 21. Which of the following is assessed by an achievement test? Achievement test में यहाँ पर क्या देखते हैं हम? Achievement test में हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? Mastery over the subject. Okay. Mastery over the subject assessed by an achievement test. यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, इसमें हमको क्या पता चलता है यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट में? मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, ओके, ऑफ लर्नर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिफर्स टू। एक टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है वो किस चीज को रेफर करेगी, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन। नाउ कम टू द ऑप्शंस। कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर। ओके, this is the right answer, option number A. So reliability of the test refers to consistency of test score. किस चीज को रेफर करेगी यहाँ पर? consistency of test score. Okay. Now come to question number 23. The median for the given number is, and the numbers are 21, 22, 26, 27, 28 and again 26. Okay. What you have to find the median of this number. Okay, आपको यहाँ पर ये जो numbers given है इनका median निकालना है। Okay, तो कैसे निकालते हैं? First of all you have to arrange it in ascending order. Okay, सबसे पहले इसको arrange कर लेते हैं ascending order में। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ascending order में arrange करते हैं। 21, 22, 26, again 26, 27 and 28. How many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers. Okay,
नाउ सी द 6 इज अवर इवन नंबर। ओके, यहाँ पर हमको जितने नंबर्स गिवन हैं ये एक इवन नंबर्स में हमको गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हम इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, 1 2 फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो 1 2। सबसे मिडिल में कौन से हैं, ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में है, मिडिल में। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसका फिर हम एवरेज निकाल लेंगे। ओके, दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो यहाँ पर हमारा ये निकल जाएगा मीडियन। ओके, मीडियन मीन्स मिडिल नंबर। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर कोई एक नंबर मिसिंग होता, मतलब ये जो 6 है ना, ये 6 ना होके 5 होता। सपोज यहाँ पर 21 22 23 24 एंड 25 है। सपोज यहाँ पर हमको कितने नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 नंबर्स अगर हमको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, मिडिल में केवल ये एक नंबर है। सो दिस इज अवर मीडियन। ओके, जब आपको ऑड नंबर्स में गिवन होगा तो बिल्कुल मिडिल में जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका मीडियन, और जब आपको इवन में गिवन होगा तो बिल्कुल मिडिल के 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब उसका एवरेज निकालेंगे हम। ओके, सो यहाँ पर आंसर इज 26। मीडियन ऑफ दिस गिवन नंबर इज 26। Now come to our next question. Question number 24. Which one among the following is an audio visual aid? Audio visual aid means जहाँ पर हमको दिखाई भी पड़ रहा है, जहाँ पर हमको सुनाई भी पड़ रहा है। ठीक है, ऑडियो मीन्स क्या, हम वहाँ पर सुन भी सकते हैं, विजुअल मीन्स क्या, हम वहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा, टेलीविजन। टेलीविजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अमंग दिस ऑल। ओके, टेलीविजन में क्या, हम यहाँ पर ये एक तरह से ऑडियो विजुअल एड है, इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस है। ओके, now come to the options. Learning depends upon the teaching quality of the teacher. Very true. Option number A is the correct answer. Learning depends upon the teaching quality of the teacher. Okay, this is our traditional learning process. Now see the other options as well. Learning depends on the experience gained from the immediate environment. Wrong statement. Learning depends upon the social and cultural context of the child. This is also wrong. Learning depends upon interaction between peer teachers and parents. Okay, so this is also wrong. Here our traditional learning process is learning depends upon the teaching quality of the teacher. Option number A is the correct answer. Now come to question number 26. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड फेज इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, सो एज यू ऑल नो अबाउट मिस्टर जीन पियाजेट। ओके, जीन पियाजेट। सो यहाँ पर जीन पियाजेट ने एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसके अकॉर्डिंग इनकी थ्योरी में क्या है, देयर आर 4 स्टेजेस विच इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, जीन पियाजेट ने एक थ्योरी दी है जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। इनकी थ्योरी में 4 स्टेजेस हैं और जो डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइडेड है। सेंसरी मोटर स्टेज में 0 से 2 ईयर्स के बच्चों को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 ईयर्स के बच्चों को हम कंसीडर करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पर 7 से 11 ईयर्स के बच्चों को कंसीडर किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर 12+ ईयर के बच्चों को कंसीडर करते हैं। ओके, सो लेटर चाइल्डहुड फेज इज रिलेटेड टू विच स्टेज। लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो होता है वो कौन से स्टेज में कंसीडर कर सकते हैं, सो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, later childhood phase is related to concrete operational stage of cognitive development. Option number C is the correct answer. Now come to question number 27. With which of the learning theory B.F. Skinner is associated? Operant conditioning theory.
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय B.F. स्किनर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. Who is the propounder of the theory of psychosocial development? Here, Erik Erikson. Erik Erikson is the propounder of the theory of psychosocial development. Okay. Now come to question number 29. Which one among the following is a characteristic of creative thinking? 4 options are given. चारों में से ऐसा कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका? क्रिएटिव थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक हमको फाइंड आउट करनी है. ओके, सो डाइवर्जेंट थिंकिंग. सी नंबर इज डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Now come to the last question of CDP, Child Development and Pedagogy. Which of the following is not a child-centered approach? 4 approaches are given. चारों में से कौन सी ऐसी approach है which is not a child-centered approach? Okay. So lecture method is not a child-centered approach because it is a teacher-centered approach. Okay, lecture method is a teacher-centered approach. Option number A, project method. This is a child-centered approach. Experimentation method. This is also child-centered approach. And problem-solving method. This is also child-centered approach. Okay, so only option number B, lecture method. This is not child-centered approach. This is the teacher-centered approach. Okay. सो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे आपके. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ओटेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर. दिस इज इंग्लिश. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इंग्लिश पेपर. ओके, हियर ऑल्सो 30 क्वेश्चंस आर गिवन और इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे अपना MIL सब्जेक्ट. बहुत से बच्चों का ओडिया होगा MIL सब्जेक्ट. यहाँ पर जो मैं सॉल्व करूंगी आपको वो होगा आपके लिए MIL हिंदी. ओके, उसके पहले हम यहाँ पर इंग्लिश सॉल्व कर लेते हैं. सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 61. द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड द ओल्ड शॉप एंड बिल्ड अ सुपर मार्केट. The government destroyed the old shops and built a supermarket. Which of the following can replace the underlined word in the given sentence? Okay, destroyed को यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो destroyed को यहाँ पर रिप्लेस कर सकता है? रिप्लेस मतलब destroyed को हटा के ये चारों में से कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पर दे दें तो वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट जो है वो सही माना जाएगा. तो पुल डाउन. ओके, द गवर्नमेंट पुल्ड डाउन द ओल्ड शॉप्स एंड बिल्ट अ सुपर मार्केट. ओके, दिस इज द करेक्ट वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 62. बरसा डैश फ्रॉम अस्थमा व्हेन शी वॉज वेरी यंग. So here option number B is the correct answer. Barsa had suffered from asthma when she was very young. Question number 63 is which letter in the word handkerchief is silent? इसको हम प्रोनाउंस करेंगे handkerchief. ओके, दिस इज द handkerchief. अभी यहाँ पर देखिए जो D है वो मेरे प्रोनाउंसिएशन में मिसिंग है. ओके, दिस इज handkerchief. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आई मीन दिस लेटर डी जो है यहाँ पर वो क्या है? साइलेंट लेटर है. क्वेश्चन नंबर 64. स्पेसिंग इज रिलेटेड टू द स्किल ऑफ राइटिंग. ऑप्शन नंबर डी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 65. डैश क्वेश्चन हैज ओनली अ फिक्स्ड आंसर. सो हियर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैज ओनली अ फिक्स्ड आंसर. ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर होता है, फिक्स्ड आंसर. Question number 66. A good review of a book does not incorporate typographical error. A good review of a book does not incorporate typographical error. Option number D is the correct answer. Now come to the question number 67. ये बहुत important question की कैटेगरी में आता है, तो आप इसको एक पेन एंड पेपर लेके वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए. Which is the first step in 5E approach? फर्स्ट स्टेप इन 5E अप्रोच. यहाँ पर पूछ रहा है कि जो 5E अप्रोच होता है उसका फर्स्ट स्टेप ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा है.
there is a 5E model of lesson planning. Okay, this comes under lesson planning approach. Okay, so 5E model of lesson planning is, number 1 is engage. Number 1 is your engage. Number 2 is your explore. Number 3 is explain. Number 4 is elaborate. Number 5 is evaluate. ओके, तो 5E अप्रोच में यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा इंगेज. सो ऑप्शन नंबर बी, इंगेजमेंट इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पर 5E जो हैं इस अप्रोच में वो यहाँ पर लिखा हुआ है. आप एक पेपर लीजिए और वहाँ पर पेन से नोट डाउन करते हुए चलिए. दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर क्वेश्चन नंबर 68 to 72. दिस इज अवर पैसेज टाइप क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर आपको एक पोयम गिवन है, पैसेज में एक पोयम गिवन है और आपको क्वेश्चन नंबर 68 से लेके 72 तक इस पोयम को रीड करके उसी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर देना है. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द पोयम. When I was young, I went to school with pencil and foot rule, sponge and slate, and sat on a tall stool at learning's gate. When I was older, the gate swung wide, clever and keen-eyed, but found in the mind's pride no peace, no rest. Then who was it taught me back to go, to cattle and barrow, field and plug, to keep to the one furrow, as I do now. So this is the poem. Now come to first question of this poem. Question number 68. Which word in the poem means scale? ठीक है, यहाँ पर स्केल का क्या मतलब होगा इस पोयम में. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है When I was young, I went to school with pencil and foot rule. ओके, सो यहाँ पर foot rule का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से स्केल. Question number 69 is the poet finds no peace or rest when he grew older. Okay. 70 number is which stanza in the poem describe the poet's childhood. So the first stanza describes the poet's childhood. Okay, this is the first stanza, this one. See, when I was young, this is the first stanza, second stanza and third stanza. Okay, so there are 3 stanzas in the poem. So when I was young means यहाँ पर childhood की बात हो रही है in your first stanza. So option number A is the correct answer. Now come to question number 71. What made the poet unhappy in spite of cleverness and ambition? His busy and restless life. Okay, option number B is the correct answer. Question number 72. The one furrow in the last line represent the journey of life of a human being. Okay, this represents the journey of life of the human being. Question number 73 is which of the following words is pronounced with T sound at the end? So this is laughed. Okay, option number A, laughed is the correct answer. So question number 68 to 72 means यहाँ तक 72 तक आपको 72 तक के क्वेश्चन जो थे इस पोयम से रिलेटेड थे. अभी 73 का आंसर हमने देख लिया यहाँ पर. लाफ्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 74. द मेथड विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप इज कॉल्ड द फोनिक मेथड. ओके, साउंड लेटर मीन्स साउंड मीन्स हियर फोनिक मेथड. क्वेश्चन नंबर 75. टू अटर अ पार्ट ऑफ अ वर्ड यूजिंग मोर वॉइस इज स्ट्रेस. यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक वर्ड आपको गिवन है, अगर आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो उसके एक पार्ट में आपकी वॉइस कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी लाउड हो जाएगी. तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जब वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर उसको स्ट्रेस बोलेंगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 76. विच डज नॉट कम अंडर कॉन्टेंट एनालिसिस इन टीचिंग अ पोयम. ओके, एक क्लासरूम है,
जहाँ पर एक टीचर है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है। ओके, सो इन दिस क्लासरूम जब एक टीचर बच्चों को पोयम पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है यहाँ पर? पोयम पढ़ा रहा है। सो विच डज नॉट कम अंडर द कंटेंट एनालिसिस इन टीचिंग अ पोयम। तो पोयम पढ़ाने के टाइम ये 4 ऑप्शंस आर गिवन। यहाँ पर ऐसा कौन सा कंटेंट एनालिसिस है जो आपके पोयम में नहीं आएगा? लैंग्वेज यूजेस। ओके, लैंग्वेज यूजेस इज द करेक्ट आंसर विच नॉट कम अंडर कंटेंट एनालिसिस इन टीचिंग अ पोयम। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा, थीम भी आएगा, कैरेक्टर्स भी आएंगे, लेकिन लैंग्वेज यूजेस की यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 77 इज इंडियंस चीयर्ड द प्लेयर्स। अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पर देखना है। सो इंडियंस चीयर्ड द प्लेयर्स excitedly in the stadium throughout the match. Option number B is the correct answer. 78 number question is which of the following are the productive skill only? So out of these 4, which one is the productive skill only? Speaking and writing. Speaking and writing is the productive skill. Read the following question and choose the most appropriate option from question number 79 to 83. From here to here. Okay, India became independent on 15th August 1947. ठीक है, जब भी कभी डेज डेट की बात होगी तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? ऑन लगेगा। डेज एंड डेट के साथ ऑलवेज आप ऑन का यूज करेंगे। सो हियर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947. Question number 80 is what a lovely morning, it is going to be a nice day. Question number 81, the book is interesting, the underlined word is, ये interesting जो है यहाँ पर वो क्या है? adjective, noun, adverb और pronoun. Okay, so this interesting word is an adjective. Okay, question number 82, let us go out for a walk, the sentence indicate suggestion. ये सेंटेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर सजेशन इंडिकेट कर रहा है। Our question number 83 is if I had enough money I would go to England. Okay, option number C is the correct answer. If I had enough money I would go to England. Now come to question number 84 to 88. Read the passage given below and choose the appropriate answer from the option. So first I am going to read the passage for you. For 20 days, Marco Polo traveled through uninhabited villages where roaming lions, bears, and lynxes make the journey very dangerous. Merchants traveling through these regions use very large canes growing here to defend themselves. At night, travelers make a huge pile of these green canes, which they can throw onto a wood fire. As they burn, they begin to twist and split in half, making a loud cracking noise and occasionally exploding. This terrifies the wild animals. Furthermore, in that sparsely populated area, they would find habitations where they can stock up only every 3rd or 4th day if they are lucky. At last, the traveler reaches houses and castles built on mountain slopes. The people there are still primitive and live by hunting and gathering the fruits of the land. They also rear sheep. Musk deer is so common in these parts that their scent can be smelled throughout the province. These people do not have either coins or paper money. Salt being rare is used as currency, says Marco Polo. Marco Polo ने क्या कहा कि यहाँ पे salt को currency के जैसे यूज किया जाता था, वहाँ पर कोई coins और paper money नहीं होते थे. So question number 84 is the first 20 days of Marco Polo's journey was dangerous because of roaming of wild animals without habitation. Question number 85 is there was a fine fragrance in the province because of musk deer. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है musk deer. See, musk deer is so common in these part that their scent can be smelt throughout the province. Okay, so यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा? musk deer. Come to the next question. The people of mountain slope यूज सॉल्ट एज देयर करेंसी. अभी लास्ट लाइन में हमने देखा कि वो लोग सॉल्ट यूज करते थे एज अ करेंसी. कोई क्वाइन और पेपर नोट वहां पर नहीं होते थे. ओके,
क्वेश्चन नंबर 87, द पीपल देयर आर स्टिल प्रिमिटिव हु लिव बाय हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 88, द एक्सप्रेशन scarcely in the passage means rarely. Okay, scarcely means rarely here. Scarcely populated means rarely populated. Okay, rarely populated area. Question number 89, I am little concerned about your examination result. यहाँ पर हमको पैसेज से ओनली क्वेश्चन नंबर 88 तक के ही आंसर्स देने थे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 89 एंड 90 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है। सो आई एम लिटिल कंसर्न्ड अबाउट योर एग्जामिनेशन रिजल्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 इज I was surprised by my sister's sudden decision to give up her job and move to New Delhi. Option number C is the correct answer. Now here we are going to solve MIL हिंदी पेपर. Okay, मोस्टली बच्चों का यहाँ पर MIL ओडिया रहा होगा, है ना। कुछ बच्चों का MIL हिंदी भी रहा होगा यहाँ पर, बाकी उर्दू, बंगाली, तमिल ये सब तो बहुत रेयर ही शायद ही किसी का रहा होगा, बट मोस्टली बच्चों का आइदर ओडिया या फिर हिंदी यहाँ पर रहा होगा एज MIL सब्जेक्ट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कौन सा कौशल है? भाषण कौशल। बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भाषण कौशल है। एक पाठ योजना का प्रथम सोपान क्या है? यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 सोपान ऑलरेडी लिख दिए हैं, एक पेपर में आप नोट डाउन करते हुए चलिए। जैसे आपको यहाँ पर पूछा है एक पाठ योजना का प्रथम सोपान क्या है, नेक्स्ट पेपर में या और भी कहीं आपको द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान या फिर अंतिम सोपान भी पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये 5 सोपान जो हैं वो याद कर लेने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा प्रथम सोपान हो जाएगा प्रस्तावना। ओके, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, अभ्यास कार्य या फिर गृह कार्य, ये हैं 5 सोपान पाठ योजना के। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 33, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। इस वाक्य में रेखांकित पद अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ओके, निज मतलब अपने आप के लिए कोई बात कहना या कुछ मतलब खुद के लिए, तो उसको निजवाचक बोलेंगे। तो मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ी सी चाय पी लीजिए। इस वाक्य में रेखांकित पद थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित है, संख्यावाचक ना होकर ये यहाँ पर परिमाणवाचक है। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। थोड़ी सी ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 39 तक क्या है? यहाँ पर पद्यांश है जिसको कि पढ़ के हमको उसका उत्तर देना है। इसको रीड कर लेते हैं पहले। लहरों से हार कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन दीवारों पर चढ़ते वक्त 100 बार फिसलती है? चींटी की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कौन फिसलती है? चींटी। क्या रगों में साहस भरता है? मन का विश्वास। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 37, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसे समझाने के लिए कवि ने नौका के अलावा और कौन सा उदाहरण लिया है? ठीक है, तो और किसका उदाहरण लिया? यहाँ पर चींटी का उदाहरण लिया गया है। किससे हार जाने से नौका पार नहीं होती? लहरों से हार जाने से नौका पार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 39 है, इस कविता का निश्चित संदेश क्या है? दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास है इसका संदेश कविता का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 तक आपका वो जो पोयम दिया हुआ था आपको कविता, उससे रिलेटेड थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 से अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यस शब्द का विलोम क्या होता है? अपयस। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द छाटिए। ममता, ये भाववाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 42, तैरना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो ये यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो उसको बोलते हैं क्या? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। याद रखिएगा, क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है। तो यहाँ पर तैरना बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तैरना जो है वो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। यानी कि जो आदमी तैर रहा है, ये तैरना वर्ड का प्रभाव उसी के तो ऊपर पड़ रहा है ना, जो आदमी तैर रहा है। तो ये यहाँ पर हो जाएगी अकर्मक क्रिया। दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, अकर्मक और सकर्मक में। ये डिफरेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा शिक्षण में भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44 से 48 तक यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है और उसमें से आपको फिर विकल्प चुन के आंसर लिखना है। ओके, तो ये गद्यांश पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व क्या किया है? CDP इंग्लिश एंड MIL हिंदी। ओके, ओटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का ये आपकी पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, ये आपकी है पार्ट 1 वीडियो, जिसके अंदर हम ये 3 चीज़ डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं। MIL हिंदी चल रहा है हमारा, लास्ट है। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, इस वीडियो में पार्ट 2 आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में पार्ट 2 आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या सॉल्व करेंगे? मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। ओके, क्योंकि इसी में आगे एक्सटेंड करने से वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। सो पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया CDP इंग्लिश एंड हिंदी, पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स एंड साइंस। और यहाँ पर ये हमारा चल रहा है पेपर 2 ऑफ ओटेट एग्ज़ाम। ओके, ओटेट एग्ज़ाम का पेपर 2 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 से 48 तक के लिए गद्यांश को रीड करना है। यहाँ से यहाँ तक है ये गद्यांश। चलिए रीड करते हैं। सेवा को मानव धर्म कहा गया है। हम किसी की सेवा करते हैं तो उसे अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। माता पिता और गुरुजनों की सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसके साथ ही हमें पास पड़ोस में रहने वालों के सुख दुख में भी सहयोग देना चाहिए। अंधे, गूंगे, बहरे तथा असमर्थ व्यक्तियों की भी यथासाध्य सेवा करनी चाहिए। किसी बीमार की सेवा अथवा घायल की मदद करने में हमारे मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण में किस पर बल दिया गया है? तो यहाँ पर सेवा पर बल दिया गया है इस गद्यांश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, हम किसी की सेवा करते हैं तो उसे क्या समझकर करते हैं? अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। 46 है, किसी बीमार की सेवा या घायल की मदद करते समय हमारे मन में कौन सी भावना नहीं रहनी चाहिए? स्वार्थ की भावना नहीं रहनी चाहिए, गद्यांश में लिखा हुआ है। ओके, हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? माता पिता और गुरुजनों की सेवा। पास पड़ोस में रहने वालों के साथ क्या करना चाहिए? उनके सुख दुख में सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ओके, सो 48 तक यहाँ पर हमारा गद्यांश से क्वेश्चन था। 49 से क्वेश्चंस अलग हो गए यहाँ पर। अब इसमें से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है? ओके, तो ये गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। कंकाल यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना है। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र की रचना क्या है? गबन। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा शिक्षण के 4 कौशलों में से किन 2 कौशलों को मुख्य कौशल कहा जाता है? तो ये जो हैं भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, कौन कौन से हैं? श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। ठीक है, अभी इसमें से कौन से 2 ऐसे कौशल हैं जिनको मुख्य कौशल कहा जाता है? तो श्रवण और भाषण। श्रवण और भाषण स्टार्टिंग के जो ये 2 हैं, इनको क्या कहा जाता है? मुख्य कौशल कहा जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वर के उतार चढ़ाव के साथ किसी पाठ के पढ़ने को क्या कहा जाता है? आदर्श वाचन कहा जाता है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वहाँ पर हमारे स्वर के उतार चढ़ाव होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं? आदर्श वाचन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषाई कौशल से अन्य भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास संभव हो पाता है? श्रवण कौशल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही पुल्लिंग शब्द चुनिए। कौशल, प्रार्थना, शिक्षा या एकता। तो कौशल यहाँ पर हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पेड़ पर बंदर बैठा है, यह वाक्य किस कारक में है? तो ये अधिकरण कारक है। ठीक है, कारक अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए कौन सा कारक है, अधिकरण। कैसे पता चला? ये जो पर आया है ना, उसी से पता चला हमको कि ये अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भाषा शिक्षण में व्याकरण सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा के शुद्ध रूप को पहचान कर उसे सही ढंग से प्रयोग करना। ठीक है, कोई भी लिटरेचर जब आप सीखोगे तो उसमें व्याकरण जो है, ग्रामर, उसको सीखने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि आप भाषा के शुद्ध रूप को पहचान कर फिर उसको सही ढंग से यूज करोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 है, भाषा शिक्षण के उपरांत मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है या कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं? तो यहाँ पर मौखिक, लिखित और प्रायोगिक विधियां प्रयोग की जाती हैं। महत्वपूर्ण है ये 3 विधियां। ठीक है, भाषा शिक्षण के उपरांत मूल्यांकन के लिए मौखिक, लिखित और प्रायोगिक विधियां महत्वपूर्ण है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, ओडिया भाषी छात्र हिंदी बोलते समय क्षमता का उच्चारण क्षमता के रूप में करता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसे क्या कहा जाता है? मातृभाषा का व्याघात कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो 6 वर्ड है ना, ये जो 6 हिंदी का है, क्ष बोलते हैं इसको, क्ष, ये क्षत्रिय वाला छ है। ठीक है ना, ये क्षत्रिय वाला छ है, लेकिन जब आप इसको ओडिया में प्रोनाउंस करेंगे ना ये छ को, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ख्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मातृभाषा का व्याघात। क्वेश्चन नंबर 58 है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि क्रमानुसार स्वयं शिक्षण विधि के रूप में जानी जाती है? अभिक्रमित स्वाध्याय विधि जो है यहाँ पर वो शिक्षण विधि के रूप में जानी जाती है। संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञ किन 2 वर्णों के मेल से बना है? तो ये ज और इया के मेल से बना है ज्ञ। ओके। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित विकल्पों में 3 पर्यायवाची शब्द हैं और 1 बेमेल शब्द है। आपको क्या चुनना है? बेमेल शब्द चुनना है। ठीक है, तो बेमेल शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंबु। देखिए, अंबर, गगन और नभ तीनों का मतलब क्या होता है? स्काई, आसमान, आकाश। ठीक है, अंबु जो है इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट होता है, तो ये बेमेल है, बाकी ये 3 एक जैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपको यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं रिगार्डिंग योर सीटेट और स्टेट टीईटी एग्ज़ाम। और यहाँ पर हम अभी ओटेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट अब आ जाएगी, तो अगर आपने पार्ट 1 देख ली है तो आप पार्ट 2 भी जाकर ज़रूर से देखिए। और इसके बाद हम सीटेट का जो पेपर हुआ है अभी 2026 में जो हुआ था, और आपका ओस्टेट का जो पेपर हुआ है उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ओटेट के बाद ये दोनों पेपर का भी हम डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल में आप जुड़े रहिए एंड डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।